टॉपिक इज द ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो ओव्यूल बेसिकली है क्या? सीड प्लांट्स में द ओव्यूल इज द स्ट्रक्चर दैट गिव राइज टू एंड कंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्स। Integuments, that is the outer covering. First is integument, second is nucellus, that gives the nourishment, cellus, that gives the nourishment to the ovule, and third is the female reproductive cell or female reproductive cell और एम्ब्रियोसाइट। तो इन 3 बेसिक चीजों से मिलकर हमारा ओव्यूल बनता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट इज इंटेग्यूमेंट्स, सेकेंड इज न्यूसेलस एंड थर्ड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और एम्ब्रियोसाइट। अब पहले हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक जनरल सा स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग करते हैं हम न्यूसेलस से, सॉरी इंटेग्यूमेंट से। These are the integuments. First integument and the second integument. अब इसके बाद हम इसमें बीच में बनाते हैं, that is nucellus and this is the embryosac, जिसमें कि बीच में है एक central cell, polar nuclei, antipodal cells, 2 synergids and 1 egg. This portion is nucellus that gives the nourishment to the developing embryosac. इसको nourishment करना है। And one is the vascular strand. This is the vascular strand. First of all, we label it. These are the outer integument, outer integument, this is the inner integument, 2 layers होती है इसकी integument की। This is the nucellus, nucellus, chalaza, this is chalaza, chalazal and raphe. These 3 are the antipodal cells. टोटल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियोसाइट का, जिसमें कि 3 हमारे होते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, वन इज द सेंट्रल सेल, central cell, these 2 the polar nuclei, polar nuclei, these 2 are, ये वाला और ये वाला है synergids, synergids, and in between this is the egg. This point
point of curve is hilum. This is the vascular strand. Vascular strand. This is the funicle. And this is the micropylar end. Micropyle. This is complete about the normal ovule. एक ओव्यूल जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बन रहा है? Outermost two integuments, two layer of the integuments. This is the two layered integuments. In between this is the nucellus that is completely filled with the nourishing substances. This nucellus nourishes this embryo sac. Embryo sac is the 8-nucleate structure in which the antibodal cells are present towards the chalaza. Antibodal cells are present, and there are number of antibodal cells are 3. There are 3 antibodal cells are present. In between a central cell or the central cell is present in which the 2 polar nuclei are present. This is the embryo sac. This is the embryo sac. And the 2 synergids and 1 egg is present towards the micropylar end. Okay, and this is the funicular and vascular strand, and this curve is known as the hilum. This is the complete structure of the ovule. अब हम बात कर लेते हैं ये ओव्यूल जो कि दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहाँ ही से ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर जो है इसमें डिविजन्स होती हैं एंड डिवाइड करके ये रिप्रोड्यूस करता है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को. ऑफस्प्रिंग होता है, और जो अभी मैंने आपसे एक क्लास पहले जो पॉलिनेशन वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पोलन जो है वो स्टिग्मा पर आ जाता है एंड स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब्स बनती हैं और वो एंटर करती हैं एम्ब्रियो में ओव्यूल तक. तो वो कैसे करती है कि फनिकल से जो है या कई बार माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब एंटर करती है, और यहाँ से जो न्यूक्लियस आता है जो एक पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है प्लस दिस न्यूक्लियस दोनों कंबाइन होते हैं और एक न्यू न्यूक्लियस बनता है जिससे कि ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. Now we will study about the types of ovules. There are 6 types of ovules that is studied in the botany. Types of ovules. There are 6 types of the ovules. First is orthotropous. Orthotropous. Second is anatropous. Anatropous. Third is hemianatropous. Fourth is Campylotropous. Campylotropous. Fifth is Amphitropous. Amphitropous. And sixth one is Caesenotropous. Caesenotropous. There are basically 6 types of ovules. Let us study first is the orthotropous. Orthotropous is the very primitive type of the ovule. In the orthotropous ovule, funiculus micropyle and chalaza comes in a straight line. This is the orthotropous ovule. Orthotropous. This is the micropyle.
This is the embryo sac. This is the funicle. Chalaza. In this type of the ovule, फनिकल, चलाजा, माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. जहां पर माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल एक स्ट्रेट लाइन में है, वो क्या है? ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल. फनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में है ये सारे, are the orthotropous ovule, and this is the primitive type of the ovule. This is the primitive type of ovule. क्या ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हो गया. इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बीटल, पाइपर, पॉलीगोनल. तो दिस इज द ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ द ओव्यूल. अब हम सेकेंड टाइप का पढ़ते हैं, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल. सेकेंड इज एनाट्रोपस. थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस होता चला जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है. एनाट्रोपस ओव्यूल. ये क्या है कि इसकी बॉडी कर्व्ड हो जाएगी. ओके. माइक्रोपाइल कम क्लोज टू द फनिकल इस तरह से. अब इसमें क्या है? दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज द फनिकल, this is the chalaza, embryo sac. ये सब में वही 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर रहेगा. अब क्या है इसमें? है द बॉडी रोटेट एट एन एंगल ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल, body of ovule rotate at an angle of 180 डिग्री. ये पूरा 180 डिग्री पर रोटेट कर गया. ठीक है. माइक्रोपाइल यहाँ पर है, तो 180 डिग्री पर रोटेट जहां पर कर जाए बॉडी, वो किस तरह का? एनाट्रोपस. दूसरा, micropyle come close to the funicle. Micropyle comes closer to the funicle. एग्जाम्पल है इसका 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो 82% है, उन सब में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज प्रेजेंट. दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. देन कम्स टू द थर्ड इज हेमिएनोट्रोपस. Then the next one is the third one is the Hemianophoros. Hemianophoros. ओव्यूल. अभी हमने दो देखी. एक में क्या था? ऑर्थोट्रोपस में फनिकल
180 डिग्री पे कर्व हो गया, जिससे कि माइक्रोपाइल और फनिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए। अब थर्ड है हेमीएनोट्रोपस। हेमीएनोट्रोपस में क्या है, ओव्यूल इज ट्विस्टेड अराउंड द 90 डिग्री ऑफ द फनिकुलर, फनिकल से 90 डिग्री ट्विस्ट हो जाएगा ये। 1 सेकेंड, 90 डिग्री ट्विस्टेड मीन्स यहां से इस तरह का आएगा। इसमें एम्ब्रियो सैक आपका, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। अब इसमें क्या है, ये 90 डिग्री पर ट्विस्ट हुआ है प्लस फनिकल के 90 डिग्री या राइट एंगल ऑफ द फनिकल। तो ओव्यूल बॉडी ट्विस्टेड at 90 degree of फनिकल। या सेकेंड वन हम कह सकते हैं 90 डिग्री, the ovule is at the right angle of the funicle, right angle of the funicle, यानी कि वो या तो राइट एंगल पे है फनिकल के, या फिर वो 90 डिग्री पर ट्विस्ट हो गया। दोनों कंडीशन सेम ही है। ओव्यूल इज एट द राइट एंगल ऑफ द फनिकल। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमीएनोट्रोपस। एग्जांपल इसका है रेननक्यूलस। रेननक्यूलस is the example of Hemianotropous ovule. Now the next is the Campylotropous ovule. Then comes to the Campylotropous ovule. Fourth is Campylotropous ovule. Campylotropous Amphitropous type of trophy. अभी Campylotropous ही हमने किया है। Is the Campylotropous ovule. Campylotropous ovule. इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है हेमीएनोट्रोपस ओव्यूल से, कि वो भी 90 डिग्री पर था, ये मोर और लेस सर्कल्ड एट द 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री से थोड़ा बहुत ज्यादा या 90 डिग्री से थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा या कम। तो इसमें क्या है, मोर और लेस at the right angle, at the right angle, more or less at the 90 degree, more or less at the 90 degree of the funiculus, यानी कि फनिकल के 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा या ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, माइक्रोपाइल बेंड्स डाउनवर्ड्स। माइक्रोपाइल जो है वो बेंड करेगा नीचे की तरफ, माइक्रोपाइल बेंड डाउनवर्ड्स, एग्जाम्पल है इसका क्रूसीफेरी एंड लेगुमिनोसी। क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में ये होता है, जैसे कि क्रूसीफर्स में आपका मस्टर्ड आ गया एंड लेगुमिनेसी में आपके सारे ये लेग्यूम्स आ गए। तो लेगुमिनोसी फैमिली एंड क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स में ज्यादातर कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल मिलता है। Then comes to the fifth one, this is the Amphitropous ovule.
Fifth one is Amphitropous ovule. Fifth is Amphitropous. Amphitropous ovule. ये सबसे डिफरेंट और अलग है। ये अलग क्यों है कि इसमें टोटली बॉडी इज कर्व्ड, बॉडी इज टोटल कर्व्ड, टोटली कवरिंग ऑफ body, and the embryo sac is horseshoe curved like a horseshoe. जैसे कि घोड़े की नाल नहीं होती है उस तरह से कर्व किया हुआ है। तो दिस इज द वेरी स्पेसिफिक फीचर ऑफ द Amphitropous ovule. First is the body of ovule is very curved. Body of ovule is very curved, बहुत ज्यादा झुका हुआ है, just like the Anatropous type, 180 degree is very curved. Embryo sac is also curved. Embryo sac is also curved like the horseshoe. इसका एग्जाम्पल हो गया लैम्ना एंड पॉपी। लैम्ना एंड पॉपी इसमें ज्यादातर Amphitropous type of ovules are found. Last one is the Circinotropous ovule. ओव्यूल्स को हम इजीली माइक्रोस्कोप के डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स में भी देख सकते हैं। हमें माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही जरूरत नहीं होती है, कभी कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जबकि ओव्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। अदरवाइज हम इसको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स में देख सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं। बेसिकली ये 6 स्ट्रक्चर ही ओव्यूल्स में पाए जाते हैं। अभी तक इतने ही हैं, आगे फर्दर स्टडीज से कितने हो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ये 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स ही मिलते हैं। Circinotropous ovule। इसमें क्या है, इसमें जो फॉलिकल है वो बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि इतना लंबा कि वो रोटेट कर जाता है पूरा रोटेट करेगा वो अराउंड दिस, कंप्लीटली रोटेट कर जाएगा। इसमें क्या है, फॉलिकल्स बिकम लार्जर, लॉन्गर, लार्जर नहीं लॉन्गर, द फॉलिकल बिकम लॉन्गर, longer so that take a round of the ovule। ओव्यूल का एक राउंड लगा लेता है, इतना लंबा ये हो जाता है, ये यहाँ से पूरा राउंड लगाकर ये पूरा इस तरह से ये पूरा राउंड लगा लेता है ओव्यूल का। दूसरा चीज इसमें माइक्रोपाइल जो है वो अपवर्ड रहता है, माइक्रोपाइल पोजीशन इज अपवर्ड, पोजीशन इज अपवर्ड, अपवर्ड। एग्जाम्पल ओपुंशिया, ज्यादातर ये ओपुंशिया में देखने को मिलता है। So the different classes or different families have the different type of the ovules on the basis of the structure or the position of the funicle, chalaza and micropyle। माइक्रोपाइल, चलाजा और फनिकल की पोजीशन के बेसिस पर ये 6 में डिवाइडेड किया गया है और सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ऑर्थोट्रोपस में तीनों एक लाइन में होते हैं, एनाट्रोपस में 180 डिग्री पर ओव्यूल मूव कर जाता है, हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री पर,
एम्पाइलोट्रोपस में मोर और लेस देन 90 डिग्री पर, एम्फीट्रोपस में जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्सशू शेप्ड होता है, सर्सिनोट्रोपस में फनिकल जो है वो बहुत लंबा होता है जिसकी वजह से वो ओव्यूल के चारों तरफ एक राउंड बना लेता है।